یہ 5 سال کا الیکشن اور اس میں ہم ووٹ ڈالنا، کسی کو منتخب کر لینا، ہم نے اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تمام کے تمام مسلمان جو جتنا سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیویٹی رکھتا ہے اور جو جتنا زیادہ اس کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو یوں سمجھ میں آ رہا تھا ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ایم ایل اے کی ٹکٹ لے کر کھڑا ہوا ہے اور دوسروں سے مقابلہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں میں آپس میں لفظی جنگ بھی چل رہی ہے، اور اتنا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گریباں پکڑ کر مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ جن کو ایم ایل اے بننا ہے اور جن کو اس عہدے پر آنا ہے، ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی ان کے اپنے اعمال پر ہوتی ہے۔ حکمت اور جو سبب کے درجے میں ہم نے استعمال کیا ہے، ووٹ کا استعمال کرنا تھا، ہمارے لیے فرض تھا، ہم نے ووٹ کا استعمال کر لیا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ اب تمام کے تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں، اور جب فیصلہ ہوگا تو اس کے فیصلے پر راضی ہو کر ہمارے اپنے اعمال کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اب کون آئے گا، کیا کرے گا، کیسے ہوگا، یہ پہلے سے ہماری قیاس آرائیاں یہ ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے، اور کوئی بھی آئے تو کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی بھی آئے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب تک جتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے جو تم پر مصیبت اور حالات اور ظالم بادشاہ بیٹھتے ہیں، تمہارے اپنے حالات کی وجہ سے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب میں کیا چاہ رہا ہوں، میری خواہش کیا ہے، پورے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی، الفاظ میرے ہیں لیکن سوچ سب کی ہے، چاہ رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہو اور مسلمانوں کا بادشاہ ہو اور پوری دنیا میں انصاف عام ہو جائے، ظلم نہ ہو، قتل غارت گری نہ ہو، اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کر دیے جائے، غریب، یتیم، ضرورت مند اور تمام کی ضرورتیں پوری ہو، اور کوئی فٹ پاتھ پہ نظر نہ آئے، کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو پھر ہم کو وہ دور میں جانا پڑے گا جس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جس دور میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ ان سے بہترین دنیا میں حکمرانی کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ انہوں نے انصاف کیا، انصاف سکھایا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور اچھا برتاؤ کرنا سکھایا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے خیر القرون قرنی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ میں، اور پھر تابعین، تبع تابعین، پھر جیسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور آتے گئے ویسے ویسے حالات خراب ہوتے گئے۔ اب ہم اگر چاہیں گے ہمارا بادشاہ منصف ہو، ظالم نہ ہو، اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادتی نہ ہو، تو پھر ہم کو ویسا بننا پڑے گا۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے بادشاہ تمہارے اعمال، تمہارے بادشاہ تمہارے اعمال ہیں، تو جیسے نیچے سے اعمال جائیں گے ویسے اوپر سے ہمارے بادشاہوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں۔ اب میرا عمل کیا ہے؟ میرا عمل یہ ہے کہ میں جب سے ووٹنگ کا اعلان ہوا، جب سے ٹکٹ مل گیا، اور جب سے پارٹی ٹکٹ مل گیا، اس سے واسطے میں اتنے باتیں کر رہا تھا، سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو تھا، اور سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں وائرل کر رہا تھا، میں جس ایم ایل اے کو چاہ رہا تھا، میں جس کینڈیڈیٹ کو چاہ رہا تھا اس کی تعریف، اور جس کو نہیں چاہ رہا تھا اس کی مخالفت، اتنا میں زیادہ کر رہا تھا کہ رات میں 1 بج جا رہا، 2 بج جا رہے، 3 بج جا رہے، مجھے ہوش نہیں، اور پھر فجر کی نماز غائب ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے،
जिक्र अस्कार की पाबंदी नहीं है, झूठ में बोल रहा हूं, गीबत में कर रहा हूं और धोखा में दे रहा हूं, इसकी टोपी उसके सर में गिना रहा हूं और जितना लोगों का माल हड़प सकता हूं उतना माल हड़प ले रहा हूं। किसके नाम पे? सांप के नाम पे, फुला के नाम पे, फुला का आदमी हूं मैं। तो अब मेरे लिए जायज नाजायज कोई अहमियत नहीं रखता है, बस मेरे को ये चीज चाहिए। तो हमारे जितने मुसलमान सोशल मीडिया पे रात में एक्टिव रहते थे, अगर वो पूरे के पूरे मस्जिद में फजर की नमाज के लिए भी आ जाते थे तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला बादशाह या फिर हम जो चाह रहे हैं मुसलमानों की हुक्मरानी वो आ जाती। लेकिन हमारा हाल ये है, जुम्मा को जुम्मा आ गए और जुम्मा में भी आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लिए फर्ज, खुतबा भी कभी सुनते कभी नहीं सुनते, वक्त मिल गया ठीक है, खुतबे से पहले आ गए तो माशाअल्लाह, नहीं आए तो सुभान अल्लाह। और फिर जैसे ही सलाम फेर दिए ऐसे जल्दी में रहते कि कब सलाम फेरे और कब मस्जिद से बाहर निकलूं और कब चप्पल पहन के गायब हो जाऊं। मस्जिद के बाहर 2-2 घंटे खड़े जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन मस्जिद में अंदर हमारा दिल नहीं लगता। सुन्नत मुअक्कदा क्या है और सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है उससे हमको इल्म नहीं। दुआ करना कितना अहम है और दुआ नहीं करने से क्या होता है इसका कोई इल्म नहीं। लोगों के पास जाकर रोएंगे, वक्त के एमएलए के पास, एमपी के पास और मिनिस्टर के पास और सीएम के पास, पीएम के पास जाकर रोएंगे कि साहब हमारे ऐसे हालात है, ऐसा हो रहा, आप ऐसा कर दीजिए, आप अच्छे आदमी है, आप भले आदमी है, आपके टाइम में और आपके पीरियड में अच्छे अच्छे काम हुए, आप हमारा भी काम कर दीजिए। 2-2 घंटे वेटिंग में रह के साहब का इंतजार करके उसके पास सिर्फ किस लिए जा रहे हैं कि हमारा ये काम है बन जाए, और साहब अगर बोल देंगे तो हमारा काम बन जाए। जिसके काम का खुद उसको अंदाजा नहीं है उसके पास जाकर हम 2-2 घंटे लगा रहे हैं। और जो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, 5 वक्त में सिर्फ ये कह रहा है 10 मिनट मेरे लिए निकाल के आ जाओ, के पास वक्त नहीं है। हमारे मस्जिद में इंतजार करने का भी वक्त नहीं है, मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद सुन्नत मुअक्कदा के पढ़ने का वक्त नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा नफिल पढ़ लिए 5 मिनट अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह का तसव्वुर करते हुए बैठ जाऊं कि मेरा खालिक कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, मेरे खालिक और मालिक की कुदरत क्या है, मैं थोड़ा सा गौर और फिक्र कर लूं मस्जिद में, ये मेरे पास वक्त नहीं। तो फिर हम चाह रहे हैं कि मुंसिफ इंसाफ पसंद बादशाह आ जाए, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये मेरी अपनी हालत है। हम वक्त निकाल कर अपनी मेजॉरिटी बताने के लिए पूरे रोडों पर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे और अपने अपने झंडे, अपने जमातों के, जमीयतों के, अपने तंजीमों के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे और कभी कभी तो कई दिनों तक हम जो है भूख हड़ताल पर बैठकर अपना मुतालबा बनाने के लिए वहां रोड पर अपन आ जाएंगे। लेकिन वहां अल्लाह ताला के पास मुअज्जिन जब ये कहता है कामयाबी रोडों पर बैठने से नहीं मिलेगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी तुम्हारी इसी में है कि तुम आकर नमाज पढ़ो। और बादशाहों का बादशाह, आकाओं का आका और जो कभी खत्म न होने वाले बादशाह, वो बादशाह वो अल्लाह है, उससे तुम मांगो वो तुमसे खुश हो जाए। अल्लाह ताला कह रहे मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा, क्या जरूरत है तुम्हारी, बोलो मुझसे मांगो, मेरे सामने आओ, मेरे सामने जब मैं फैसले करूंगा तो दुनिया के लोगों के दिलों को बदल दूंगा, अहवाल को बदल दूंगा, हालात को बदल दूंगा, जमीन और आसमान के निजाम को बदल दूंगा, क्योंकि सारा निजाम मेरे हाथ में है। तो ये हमारा बादशाह अल्लाह है। इसलिए आने जाने वाली सरकारों से न कुछ हुआ है न कुछ होगा। असबाब के दर्जे में कुछ दुनियावी काम होते हैं और उनके जिम्मे सौंपे जाते हैं। ये दुनियावी एक निजाम है, चलता है, उस निजाम के मुताबिक हमने अपना काम, अपना नुमाइंदा जिसको जो पसंद था वो पसंद करके वोट डाल दिया। अब इसके बाद हम अल्लाह से दुआ करें कि बेहतरीन नुमाइंदा जो हमारे हक में हो सकता है, बेहतरीन हुकूमत जो हमारी रियासत में, हमारे रियासत के लोगों के, पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग रहते हैं, इंसान बसते हैं, उन सब के हक में बेहतर हो, अल्लाह ताला उनको बैठा है।
और फिर उसके बाद तीसरा काम, हमने इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के जमाने में जितना एक दूसरे के खिलाफ बोल लिए, जितना एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए, जितना एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया को गंदा कर दिए और क्या क्या बोले क्या क्या नहीं बोले सब भूल जाना है। और जो लोग खड़े हो रहे हैं माशाअल्लाह, वो दिन भर ऐसी तकरीर करेंगे, ऐसा एक दूसरे के पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, रात में एक दस्तरखान पर बैठकर वो पार्टी वाले खाना खा रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, एक खुदा से मानने वाले हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। हमारा खुदा एक है, हमारा किबला एक है, हम एक रसूल आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और हमको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और हमको मुत्तहिद रहने का हुक्म दिया गया है। वो इंसान कैसे किसी का दुश्मन बनकर, जो इलेक्शन के जमाने में दुश्मनी थी वो बाद में निकाले, ये हो ही नहीं सकता। छोड़ दीजिए, असल जो उम्मीदवार है वो दुश्मनी नहीं रखते तो हम क्यों दुश्मनी रखें? ये मुसलमानों की गफलत है। इलेक्शन में लड़ने वाले 5 साल तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे से बात नहीं करते, और वहां जो लड़ा रहे थे, जो कुर्सियां चाह रहे थे, वो उनकी आपस में दावतें चलती है, एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे के गम में शरीक हो रहे हैं। ये हमारी जहालत है, इस जहालत से हमें निकलना चाहिए। चौथी बात यह है कि जब तक हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं होंगे, हालात नहीं बदलेंगे। और अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने का मतलब हमारे अपने गुनाहों से खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। हर हमेशा कम से कम सुबह और शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे और अपने हालात, अपने अमाल को बदलने की कोशिश करे। 5 वक्त के नमाज के एहतमाम की और सुन्नतों पर अमल करने की। और नमाज के लिए अगर आ रहे हैं तो नमाज की कितनी सुन्नतें हैं और नमाज से पहले की कौन सी सुन्नतें मुअक्कदा है, नमाज के बाद की कौन सी सुन्नतें मुअक्कदा है, इससे छोड़ने से कितना बड़ा गुनाह है। अगर बार बार हम सुन्नतें मुअक्कदा छोड़ देंगे तो फासिक कहलाए जाए। इसका एहतमाम हमें करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुमा के दिन, जुमा से पहले मौलाना साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, माशाअल्लाह अच्छा बोले, लेकिन जैसे ही सलाम फेर दिए फिर वही बस अपना चप्पल पकड़ लिए चले गए। सुन्नत मुअक्कदा के एहतमाम की तौफीक नहीं हुई। ये इलेक्शन के बाद के हालात है। मायूस बिल्कुल नहीं होना है। जिसको हमने वोट दिया है हो सकता वो आ जाए, जिसको नहीं दिया वो भी आ सकता है, और जो भी बैठेगा वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे अपने जो काम है वो अल्लाह करने वाले हैं। असबाब के दर्जे में किसी को एमएलए, किसी को कुछ मुंतखब कर दिया जाता है, डरने और खौफ खाने की बात नहीं है। बाकी अल्लाह की तरफ रुजू होकर अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतरीन फैसले फरमाए, हमारे शहर के हक में, हमारी पूरी रियासत के हक में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।